So welcome all of you. And as I told you before that to maintain the continuity, this pre-recorded video, I am providing it to you for few lectures. That will be especially when there'll be detailed chapters of SS. And of course, when lot many sentences will have to solve related to compound, complex, simple and direct, indirect. So these are some of the times when we'll be providing you this pre-recorded videos ताकि एक continuity में तुम उसे सुनो, तुम उसे समझो, and just like it will be very equal to your live lectures, no doubt. Right on time, it will be provided to you, lecture time, उसके ना 2 मिनट पहले ना बाद में, and yes, but later on you can revise it, but will be provided to those who will be present in the lecture, right? So here I start with the chapter climate, which as such we had already done. But for many of them, I got the message that there was some network issues on their end, या उनके तरफ से थोड़ा बहुत कुछ तो network issues थे. Apart from that, like due to some other reasons, 1 or 2 students were absent. तो जो हमारे जो आगे के lecture थे वो in between there was like some communication between you and me asking you some questions, you raising your hand, and doubt solving was carried forward. तो ये कंटिन्यूटी नहीं रहती जब तुम रिवाइज करने बैठते हो, बीच बीच में एक्स्ट्रा डायलॉग्स आ जाते हैं काफी. तो आई हैव फाउंड दैट दिस इज अ बेटर ऑप्शन उनके लिए जिनको एक्चुअल में पढ़ाई करके रिवाइज करना है फिर से. तो लेट्स स्टार्ट. तो अ बिट ऑफ इन शॉर्ट द रिवीजन related to what we had already done. तो climate सबको पता है that as we did over here in short कि it changes approx 35 years or more के बाद, otherwise तो उतने साल तक वो same रहेगी. And what is climate? Average of atmospheric condition over long period. फिर weather, short term atmospheric condition में जो change आते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम रात को टेम्परेचर में फर्क आना. atmospheric condition थोड़े टाइम के लिए रहेगी सेम, फिर बदल जाएगी 2-4 घंटों में, जैसे एकदम से साइक्लोनिक इम्पैक्ट. लेकिन वो थोड़ी ना 4 महीने तक साइक्लोनिक इम्पैक्ट रहेगा, तो वर्ल्ड टिकेगा ही नहीं ऐसे, राइट? तो दैट इज ओनली फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स, फिर एकदम से बारिश, फिर थोड़ी ना 6 महीने तक बारिश रहेगी. इज दैट टेम्पररी, शॉर्ट टर्म? तो दैट इज वी कॉल वेदर चेंजेस एनी टाइम इन अ डे. और वेदर चेंजेस का डिपेंडेंस हम किस पे रख सकते हैं? There are some factors जिस पे weather depend रहता है. That is air temperature, air pressure, humidity, etc. Weather affects, of course, agricultural activities. I need not repeat क्योंकि ये हमने already किया था डिटेल में, and I got many answers also from most of you. Then मतलब कि let me tell you in short, क्योंकि बच्चों ने तब एक बहुत गलत तरीके से इसको पिकअप किया था. तो weather affects मतलब उसकी बुरी असर भी हो सकती है. एकदम से बारिश शुरू हो जाए, बिन मौसम बारिश, तो होगा क्या? सीजन है नहीं, फिर भी there is rain for that few minutes or hours, a very heavy shower, तो होगा क्या? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हमारी रुकावट में आ जाएगी. जितना भी ग्रो होने जा रहा था अच्छे से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. लाइक मैंगो एग्जाम्पल आई हैड गिवन यू बिफोर. Daily weather report is published by Indian Meteorological Department, IMD, learn it. Indian climatic condition is different. Season changes because wind direction की वजह से, और monsoon wind changing the direction as per season. Season के हिसाब से जिस तरह से सीजन हो गया हम देखते हैं कि विंड बदलते रहते हैं, या विंड के हिसाब से सीजन हमारी बदलेगी. इस वाइस वर्सा. अरेबिक वर्ड मौसम मतलब मौसम मतलब वेदर experienced same by India, Sri Lanka and neighboring countries of India. Season changes due to revolution of earth around the sun. मैंने कहा था, spelling mistake, sorry. So revolution of earth around the sun and an axial tilt, उसकी वजह से season change होती है. Axial tilt is 23.5, angle 66.5. Regions with more sunlight, naturally summer. लेस सनलाइट या स्लांट सनरेज विंटर. जैसे हमारे यहाँ अभी स्लांट सनरेज है बिकॉज वी आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर.
या नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, जबकि ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है तो उसका समर है, क्योंकि वहां पे सनलाइट स्ट्रेट है, वर्टिकल सनरेज। हमारे यहाँ उसी समय पे अभी दिसंबर में विंटर है, ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर इज समर बिकॉज वी आर इन डिफरेंट हेमिस्फीयर। Vertical sun rays on Tropic of Capricorn, 22nd December. The summer in southern hemisphere, that's Australia example we can take. उनके यार at present vertical sun rays है तो summer, उसी समय पे हमारे यहाँ slant sun rays हैं तो winter. So winter in northern hemisphere, that's example India. Summer in southern hemisphere, example Australia. Just remember this one example. Winter in India nicer, longer and colder. Similarly, vertical sun rays over Tropic of Cancer on 21st June, days are longer. तो ये हमने ऑब्जेक्टिव में डाला था, तुम्हें काम दिया था हमने. Now, rotation revolution of the earth has a direct impact on food, clothing, etc. और ये पूरा लर्न करना है पैराग्राफ, that why Indian climate is called monsoonal climate. तो ये 4 लाइन लिखनी है तुम्हें. अब हम वेरिएशन देखते हैं कि नॉर्थ में अलग है क्लाइमेटिक कंडीशन. देखो समर पूरे इंडिया में समर है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ इंडियन स्टेट्स. पूरे इंडिया में सेम क्लाइमेट. अभी अगर दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अगर हमारे यहाँ विंटर है तो नेचुरली नॉर्थ में भी विंटर होगा, साउथ में भी विंटर, ईस्ट, वेस्ट, मिड ऑफ इंडिया दैट इज मध्य प्रदेश, हर एक जगह पे विंटर होगा. हाँ, परसेंटेज डिग्री मोर और लेस. रेनी सीजन है तो पूरे इंडिया में रेनी सीजन. जरूरी नहीं है कि अहमदाबाद में बारिश नहीं हुई तो रेनी सीजन नहीं है. वो इज सेम ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ परसेंटेज डिग्री चेंजेस, दैट्स वेरिएशन. साउथ इंडिया ट्राइंगल शेप, 3 साइड कवर्ड विथ वाटर, पेनिनसुलर शेप दैट इज, क्लाइमेट उसकी मॉडरेट है, मैरीटाइम क्लाइमेट है. नॉर्थ इंडिया इज नॉट नियर द सी शोर लाइक साउथ इंडिया, इज अवे फ्रॉम सी शोर, तो उसकी क्लाइमेट है कॉन्टिनेंटल. Tropic of Cancer passes through middle of India. Area to the south of Tropic of Cancer is torrid zone. Exactly Tropic of Cancer जो इंडिया के मिडिल से पास हो रहा है, उसके साउथ का पार्ट टॉरिड जोन होगा और उसके ऊपर का पार्ट होगा टेम्परेट जोन. Thus we see large difference in temperature in north and south and east and west, and we see difference in rainfall and lot many other things. Moisture, there's humidity. Now, factors affecting climate. लैटिट्यूड, 2 सक्सेसिव लैटिट्यूड के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर होगा? 111. वर्टिकल सनराइज ऑन इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के आसपास और इक्वेटोरियल रीजन में काफी गर्मी होगी थ्रू आउट द ईयर. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन एज वी हैव डन ऑलरेडी, टॉरिड एंड टेम्परेट. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम सी, नियर द कोस्ट टेम्परेट क्लाइमेट. तो अब हम इसको थोड़ा सा बदलेंगे. नियर द, जैसे हमने कहा था टेक्स्ट बुक में स्लाइड एक ये वर्ड यूज हुए, हम एक सिंपल सा वर्ड यूज रखेंगे याद रखने के लिए, that if we are near the coast it is maritime climate, neither too hot in summer nor too cold in winter, but good rainfall like Kerala, Mumbai, Goa, etc. Away from sea coast, continental like Ahmedabad, best example, right? So too hot in summer, too cold in winter, hardly any rainfall. तो मुंबई को हम कहेंगे मैरीटाइम क्लाइमेट, दिल्ली को हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. यहाँ पे अहमदाबाद भी लिख सकते हो. अब यहां से हमें मेन आज का स्टार्ट करना है एल्टीट्यूड. एज वी गो हायर इन एटमॉस्फेयर, एल्टीट्यूड मतलब हाइट फ्रॉम सी लेवल, तो जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे एयर प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, व्हाइल हायर रिलीफ गेट्स मोर रेनफॉल. जितना ऊपर जाओगे नेचुरली रेनफॉल तो जहां पे ज्यादा देयर बी मोर ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड ऑल, वी विल सी मोर ऑफ रेनफॉल आल्सो. और लेकिन जितनी ऊंचाई पे जाओगे परसेंटेज ऑफ दैट इज टेम्परेचर विल डिक्रीज, ठंड ज्यादा होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. अगर तुम अवे फ्रॉम सी कोस्ट वाली जगह पे या लेस हाइट वाली जगह पे जाओगे तो due to high altitude means due to greater height, Himalayan peaks remain snow covered, right? And so just a minute, Himalayan peaks remain snow covered throughout the year क्योंकि ये बहुत great height पे है. Most of the
part of the year, I would say, is covered with snow. Moist air, if you must have been to Darjeeling and many other such places, Gangtok, Sikkim, तो वहां से बहुत आसानी से कंचनजंगा दिखाई देता है, part of Himalayan range, covered throughout the year with snow, and it becomes gold color, golden it looks, it shines like gold early morning, like between 4 to 7. ध्यान रख, और 4 बजे के पहले तो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, because 4 o'clock the first sun rays falls on this mountain. Kanchenjunga is beautiful. I would always say, if you get a chance, if नहीं, naturally 4-5-6 महीने में तो बाहर निकलना हम शुरू कर देंगे without any I would say precautions, क्योंकि due to vaccine that will take entry into India by very few, I would say 1 or 2 months. That is what we keep on hearing in the news. So God bless, everything will be very fine soon. तो 6 महीने के बाद तो हम ये सोच ही सकते हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं तो घूमने जाएंगे बड़े टूर पे. कई लोग तो अभी भी जा रहे हैं, बट yes, people like us, तो जैसे कि कई लोग, कई फैमिलीज अभी भी थोड़ी डर में हैं कि बाहर नहीं निकलना है. yes, we are taking precautions, डर नहीं है, precautionary measures ले रहे हैं हम. तो as said by the government and doctors, क्योंकि वो लोग तो मूर्ख है नहीं, right? So I would say better take precautionary measures rather than going against the government and doctors. So because मैंने कई लोगों को जब हम मिलते हैं तो वो लोग ये भी कहते हैं, like you know, communication on phone or anything, कि कोरोना जैसा कुछ है नहीं. This is what we keep on listening to many such people. So these are all ignorant people. So we will not talk about such people, but let's talk about over here main interesting चीज, कि 6 महीने के बाद जब घूमने निकलोगे कहीं पे लॉन्ग एक टूर पे, आई वुड ऑलवेज से कि नॉर्थ में चले जाओ, समवेयर इन अक्टूबर नवंबर, दिवाली टाइम, नेक्स्ट दिवाली ऑफ कोर्स. इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिक्किम, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, ब्यूटीफुल प्लेसेस. पहले इंडिया को देख लो. You never know in future what's standing there in front of us. Last year we never knew. हम कई लोगों ने तो डिसाइड भी कर लिया था कि भाई मई वेकेशन में कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद की दिवाली में कहाँ जाएंगे, बट दे हम कहाँ गए, घर में ही थे. So that was also for good. We have learned so many things in this lockdown period. Personally, me, myself, I have learned a lot. Unlimited चीजें सीखी हूँ मैं, and I'm very happy and proud about it that I have made the best use of this Corona time period, rather taking it negatively and crying the whole day long, right? I've taken it very positively. So I tell even you people that take this time as positively, और खूब सारा काम कर लो, खूब सारी मेहनत कर लो, पढ़ाई के अलावा भी काफी कुछ सीखते रहो, ऑनलाइन अच्छी चीजें हैं सीखने के लिए. सो लेट्स मूव अहेड. तो यस, बाहर की कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज को बाद में देखेंगे. इंडिया इज सो ब्यूटीफुल कि शायद आधी लाइफ तो इंडिया को नुक एंड कॉर्नर देखने में और समझने में चले जाएंगे हमारे, एंजॉय करने में. सो विथ इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द माउंटेन्स इन मेघालय, दैट्स इन ईस्ट ऑफ इंडिया, रेनफॉल इंक्रीजेस क्योंकि डेंस फॉरेस्ट भी है वहां पे. इन जनरल एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, मतलब टेम्परेचर कम होता जाएगा, मतलब ठंड बढ़ेगी. 1 डिग्री फॉर दी हाइट ऑफ 165 मीटर. जितनी बार 165 मीटर्स अप जाओगे 1 डिग्री टेम्परेचर कम होगा. मतलब 1000 मीटर अप जाओगे तो 6.5 डिग्री कम होगी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ व्हेन यू गो अप. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड, यहाँ पे आधा ये नीचे का जो हिस्सा है, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एल नीनो, आईटी, सीजेड, अगर तुम्हारी स्कूल की टीचर पर्सनली कहे तो इस एवरी ईयर हम देखते हैं बहुत सालों से कि कई, क्योंकि एसएस की बुक यही है 4-5 साल से, पहले भी शायद थोड़ी बहुत यही थी, थोड़ा बहुत वो मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से थोड़ा कुछ चेंजेस ले आए एंड ऑल, बट नथिंग मोर देन दैट, कंटेंट वही है. तो ये जो जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एल नीनो, आईटी, सीजेड, तो कई स्कूल में आज तक कहते हैं कि भाई सिर्फ डेफिनेशन लर्न कर लो, कईयों में तो ये कट ऑफ कर देते हैं. सो इट्स ऑल एज पर द डिफरेंट स्कूल टीचर्स. आई वुड से आई विल शो यू फॉर योर नॉलेज. बाय हार्ट करो, एग्जाम में टीचर कहती है तो आई वुड से नॉलेज कलेक्ट कर लो पहले. व्हाट इज जेट स्ट्रीम, तो ये अगर मैं तो समझाऊंगी, बट अदर देन दैट इफ यू गो थ्रू the videos that I'll be showing you, this 4 terms or 5 terms will become easier, right? ये साउथ वेस्ट मानसून विंड, ये सब बहुत इजी हो जाएगा समझना सिर्फ मेरे बोलने से, यहाँ पे मैप पे दिखाने से. when it is shown to you in form of a video, it becomes very clear. तो ये एक नॉलेज भी तुम इकट्ठा कर सकते हो अपनी
लाइफ में, समथिंग एडिशन इन योर लाइफ नॉलेज. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ये याद रखना, जितना प्रेशर कम बोलोगे तो टेम्परेचर हाई, मतलब जितनी ज्यादा गर्मी तो प्रेशर लो, लेकिन अगर ठंड बढ़ी तो ऑपोजिट बोलो, टेम्परेचर डिक्रीजेस. मतलब टेम्परेचर कब डिक्रीज होगा, हम कैसे, एसी अगर हमें और ज्यादा ठंडा करना है तो हम 18 पे से 19, 20, 30 करेंगे या भी कम डाउन. तो अगर 20 है तो हम 22 नहीं करेंगे, ठंड बढ़ाने के लिए हम थोड़ा कम करेंगे. तो जितना कम टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज, और जितना ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर डिक्रीज, ऐसे याद रखना, ऑपोजिट, वाइस वर्सा. और टेम्परेचर इंक्रीज मतलब गर्मी, टेम्परेचर डिक्रीज मतलब ठंड. इंडिया फॉल्स इन अ पाथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड. अब ये ट्रेड विंड क्यों कहा गया है? ट्रेड मतलब कि बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. तो ये ट्रेड विंड का नाम इसलिए दिया गया है, दैट यू विल सी लेटर ऑन आल्सो, इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, कि पहले के जमाने में लोग इस विंड को फॉलो करते हुए, दे यूज्ड टू डू देयर, दे यूज्ड टू वेरी राइटली फॉलो द विंड, दे यूज्ड टू रीच the place where they were supposed to carry out their trade and all. तो ये ट्रेड के लिए काफी यूज होते थे ये नॉर्थ ईस्ट विंड, नाम दिया है ट्रेड विंड. दिस विंड्स ओरिजिनेट ड्यू टू ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब टेम्परेचर लो, बेल्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. These winds deflect, that is they part away due to Coriolis force, again the wind force, and they blow towards equator. तो ये सारी wind, they move towards the equator. In past, these winds were used for trade in ocean, so they were called trade winds. Your one marker. As these winds blow over land mass, they have less moisture. अब जैसे ये wind land की तरफ आएगी तो उसमें humidity कम होगी, because क्यों? They are north east wind, तो उसमें मॉइस्चर कम होगा, वो ड्राई होगी. लेकिन जो साउथ से आएगी विंड, वो ओशन पे से आएगी, सो इट हैज मोर मॉइस्चर एंड इट ब्रिंग्स रेन. रिमेंबर दिस मच. तो इंडिया फॉल्स इन विच पार्ट? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड. तो ये जो विंड आएगी नॉर्थ से, उसमें कम मॉइस्चर होगा. Indian Ocean is located to the south of India, Arabian to the west, and Bay of Bengal in the east of India. Due to this vast water mass, the winds passing over them absorb moisture and bring rain to India. अब जो साउथ से जो विंड आएगी वो पानी पे से बहती हुई आएगी ये हवा. अब होगा क्या, उसमें इतना मॉइस्चर आ जाएगा, the wind passing over them will collect the moisture from this ocean water and brings rain to India. During winter, high pressure, मतलब ठंड ज्यादा. Why? High pressure, low temperature. AC वाला low temperature. So during winter, high pressure develops to the north of Himalaya. तो हिमालय में अब ठंड बढ़ने लगेगी विंटर में. ठंड तो वैसे भी है, but it is pleasant. अब ये severe cold. Winter. Cold and dry winds from this region blows towards the oceanic area where low pressure is created. अब यही dry wind north की blow होगी ocean के ऊपर और create करेगी low pressure. During summer, low pressure develops due to high temperature over Central Asia and Indian landmass. अब जो हवा समर में क्यों हमें गर्मी लगती है और क्यों साइक्लोनिक इंपैक्ट आने की पॉसिबिलिटी बहुत है, पानी में भी, दरिया में भी और लैंड पे भी, क्योंकि अब प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है. तो गर्मी बढ़ेगी लैंड मास पे. और एशियन इंडियन लैंड मास, this type of wind starts blowing with high temperature. At this time, high pressure exists over Indian Ocean in south. Wind tends to blow from high pressure over Indian Ocean to low pressure in North India. तो जो इंडियन ओशन के ऊपर का जो हाई प्रेशर गर्म हवा है वो धीरे धीरे बढ़ेगी टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया. एंड दिस विंड्स आर कॉल्ड एज साउथ वेस्ट monsoon wind. They bring more rain as they have moisture. I would say remember in this paragraph, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो देख लो समझने के लिए. यहाँ पे सिर्फ समझना है तुम्हें that विंटर में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर इन नॉर्थ ऑफ हिमालय.
अब ये विंड ड्राई होगी नेचुरली, इसमें मॉइस्चर तो है नहीं, राइट। ठंड वाली हवा नॉर्थ की, उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, वो कोल्ड एंड ड्राई विंड होगी, वो ब्लो होगी टुवर्ड्स ओशन, राइट। वेन लो प्रेशर अब ओशन की तरफ आएगी, नीचे की तरफ, तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, टेम्परेचर हाई होगा, राइट। और ये हवा फैल जाएगी पूरे इंडिया के लैंड एरिया पे, एंड हाई प्रेशर दिस टाइम एग्जिस्ट इन इंडियन ओशन इन साउथ. Winds tends to blow from high pressure water area towards low pressure in North India. These winds are called southwest monsoon wind. मतलब ये जो इंडियन ओशन के ऊपर से जो हवा बह के आती है, that wind collects lots of moisture and brings rain and slowly it moves towards, ये southwest wind नॉर्थ की तरफ मूव होगी धीरे से. Sometimes a peculiar feature, characteristics या phenomena takes place over places located far from India that creates temporary changes in the long-term climatic pattern. Phenomena like jet stream, western disturbance, El Nino, ITCZ have affected the Indian weather to a great extent. बहुत सारे फीचर्स हैं ऐसे, जैसे जेट स्ट्रीम, एल नीनो एटसेट्रा, जिन्होंने हमारे इंडियन वेदर को अफेक्ट किया है नेगेटिवली कई बार. However, monsoonal features of climate of India remains unaffected. Yes, जो हमारी क्लाइमेटिक जो पैटर्न है, समर विंटर रेनी, जो महीने में आना है वो तो तभी आएगा, लेकिन उन महीनों के बीच में कोई एक दिन कभी बहुत ही डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, जैसे बहुत ही सिवियर साइक्लोनिक इम्पैक्ट, फिर वो पूरे 6 महीने नहीं रहता, वो एक दिन या 2 दिन के लिए उसकी इफेक्ट रहती है. तो उसमें से ये है जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एल नीनो, आईटीसीजेड, जो हमारे वेदर को अफेक्ट करती है, क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करती. सी वंस अगेन बी वेरी क्लियर. Features like jet stream and all will affect our weather on a large scale. Indian weather को मतलब 1-2 दिन तक उसकी इम्पैक्ट रहेगी, जैसे फ्लड, साइक्लोनिक इम्पैक्ट की वजह से जो डिस्ट्रक्शन, तेज हवा चलने की वजह से जो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, दिशा वेदर में इफेक्ट आ रही है. इंडियन वेदर में 2-3 दिन, 1 दिन, 4 दिन के लिए, बट इंडिया की क्लाइमेट में फर्क नहीं आता. समर विंटर रेनी अपनी जगह पे ही है, ऑटम स्प्रिंग रिट्रीटिंग अपनी ही जगह पे है क्लाइमेट, ठीक है, सीजन्स. सो लेट्स सी इन शॉर्ट. एल्टीट्यूड, हायर फ्रॉम सी लेवल, हाई एयर प्रेशर एट टेम्परेचर डिक्रीजेस. जितना ऊपर जाओगे हाइट पे, प्रेशर, टेम्परेचर, मैं तो ये कहूंगी टेम्परेचर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस. And you may not take air pressure over here. Himalayan peak is snow covered. Meghalaya is high altitude. Rainfall increases. Air temperature decreases. And temperature कम होगा. हर एक 1000 मीटर ऊपर जाओ तो 6.5 डिग्री कम होगा from the surface of Earth. Now, you will also see atmospheric pressure and winds. India falls in the path of northwest trade wind. In the past, trade winds were used to carry out trade in the ocean. Trade winds less moisture because they blow over land. Seasons of India, तो कितनी सीजन है ये तो ऑलरेडी हमने पहले किया था. समर विंटर रेनी रिट्रीटिंग, बीच में छोटी मोटी 2 आ जाती है, स्प्रिंग एंड ऑटम. वेरी इंपॉर्टेंट योर डिटेल आंसर 4 मार्कर, कुड बी आस्क्ड 3 ऑल्सो, तब भी उतना ही लिखना है डिटेल में. वेदर इन आवर कंट्री रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर एवरी 2 months. ये गुजराती कैलेंडर के हिसाब से. अगर हम इंग्लिश कैलेंडर ले तो हम कहेंगे 4 महीने, राइट. लेकिन यहाँ पे 3 महीने डाले क्योंकि रिट्रीटिंग को भी ऐड किया हुआ है. कहीं पे बीच में स्प्रिंग आ जाएगा, ऑटम आ जाएगा, तो हमने 3-3 महीने लिए. बट दिस इज एज पर गुजराती या हिंदी कैलेंडर दैट यू कॉल, दैट इज एवरी 2 months वी हैव weather that remains the same. And when the weather remains the same for many months, मतलब 1 month, 2 महीने, 3 महीने, तो उसको हम कहेंगे सीजन. This 2 months duration is called season. Now be once again very clear. दिन में 10 बार बदले वेदर तो उसको हम सीजन नहीं कहेंगे. रोज बदले उसको भी सीजन नहीं कहेंगे, लेकिन उसको हम वेदर चेंज कहेंगे. लेकिन वेदर सेम रहा, नियरली, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बट 80-90% इफ इट रिमेन्स द सेम, तो होगा क्या, हम उसे सीजन कहेंगे. फिर तो 2 महीने के लिए सेम रहा तो सीजन बन गया. Now there
6 सीजन इन इंडिया एज पर एंशिएंट टाइम से हम बोलते आ रहे हैं. These are हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्मा, वर्षा, शरद. There is hardly any noticeable difference in the weather between two successive season. मतलब हेमंत और शिशिर में, मतलब पूरे हेमंत में देखो तो 2 महीने तक कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं. शिशिर में पूरे 2 महीने देखो तो ज्यादा कुछ फर्क है नहीं. तो यहाँ पे हमने लिया है 6 2 12, 6 सीजन ले ली है, 2 महीने की हो गए 12 महीने. So if 2 seasons are taken simultaneously, then there would be only 3 season of the year. लेकिन अगर हम दोनों को साथ में ले लेते हैं तो उसको हम कहेंगे इंग्लिश में समर, विंटर, रेनी. चलो फिर से, वेदर डेली चेंज या दिन में 10 बार, तो उसको जो चेंजेस आए तो उसको हम कहेंगे वेदर. लेकिन 2 महीने तक अगर मोर और लेस 90% 80% वेदर सेम रहे, थोड़ा बहुत बदलाव आएगा तो उसको हम कहेंगे सीजन. गुजराती कैलेंडर के हिसाब से या हिंदी कैलेंडर में लिखा गया ये 6 सीजन. लेकिन 2 सीजन में ज्यादा फर्क नहीं है. हेमंत को खुद को भी ले लो तो उसके भी 2 महीने सेम है, लेकिन उसके बाद क्या फॉलो हो रहा है, शिशिर. तो शिशिर भी हेमंत की तरह मोरलेस सेम ही है. तो हमने हेमंत और शिशिर को ऐड कर दिया और एक सीजन बनाया. वसंत और ग्रीष्मा को ऐड करके एक सीजन, और वर्षा और शरद को ऐड करके एक सीजन. तो टोटल बने 3, राइट. समर, विंटर, रेनी या कोल्ड, हॉट, रेनी, राइट. चेंजेस इन सीजन एक्सपीरियंस डिस्टिंक्टली इन इंडिया. हाँ, सीजन का बदलाव एकदम से हम देख सकते हैं पूरे कंट्री में. जैसे ठंड आई तो एकदम से फर्क दिख गया, बारिश आई तो वो तो दिखेगा ही, गर्मी आई तो एकदम से खाने पीने में, कपड़ों में फर्क आ गया. कोल्ड वेदर स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ विंटर. टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग समर with the onset of monsoon. Air gathers moisture and brings rain, right? Now, Indian Meteorological Department of Government of India at Delhi has divided the climate of India into 4 seasons. That is, as I told you, December to Feb winter, March to May summer, June to September rainy, बीच में एक आध महीना ले लेते हैं रिट्रीटिंग, अक्टूबर टू नवंबर या अक्टूबर नवंबर एनी वन, और उसमें भी 2-3 दिन की बारिश होगी, लाइक समवेयर इन दिवाली और समटाइम इन नवरात्रि. So in short, seasons of India, weather of India same for every 2 months. 6 seasons in India, they are cold, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया हिंदी गुजराती में. अब इंग्लिश में 4 हम गिनेंगे और 5th और 6th 15-15 दिन का होगा या 20 दिन का, एंड दैट इज स्प्रिंग एंड ऑटम. रिट्रीटिंग 1-2 महीने, 1.5 महीना, बट वो भी डेली नहीं. सो कोल्ड 3 महीने, हॉट 3, रेनी 3, रिट्रीटिंग अक्टूबर नवंबर. क्लियर? सो दिस यू कैन सी, ये हमने किया. ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, कई बच्चों को तो बाय हार्ट है ही ऑफ कोर्स. तो हम करेंगे समर, विंटर, रेनी, उसके मंथ देख लेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एटसेट्रा. और ये कर लेना शिशिर, वसंत, ग्रीष्मा एंड ऑल. क्लियर? ये बाय हार्ट करना है. नाउ कोल्ड वेदर. तो पहले हम लेते हैं कोल्ड वेदर, दैट इज दिसंबर टू फेब. इन इंडिया 3 months ड्यूरेशन फ्रॉम दिसंबर टू फेब इज कंसिडर्ड एज विंटर. तो इंडिया में हमने दिसंबर टू फेब, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीनों को हमने विंटर कहा है. सन शाइन्स वर्टिकली दैट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया. हमने एग्जांपल लिया था सदर्न हेमिस्फीयर में, तब गर्मी है बिटवीन 22 सितंबर एंड 21 मार्च, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. फिर जैन, फेब, तो वहां पे ये सनरेज वर्टिकल होंगे सदर्न हेमिस्फीयर में. इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्लांटिंग सनरेज. तो हमारे यहाँ ठंड होगी दिसंबर, जनवरी, फरवरी. और टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर प्रिवेल्स मीन्स एग्जिस्ट इन अ लो वे, मतलब लो टेम्परेचर एग्जिस्ट, ठंड होगी. विंड ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट मतलब हमने देखा था ट्रेड विंड, लेकिन वो सूखी हवा होगी एंड इट इज कोल्ड. इफ यू हैव फॉरगॉटन, लेट्स सी ओवर हियर. इट इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो कोल्ड एंड ड्राई होगी, राइट. ड्यूरिंग विंटर नॉर्थ के हिमालय में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर सॉरी
लो हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स प्रेशर हाई होगा। जैसे हमने कहा, जब भी टेम्परेचर डाउन होगा प्रेशर हाई होगा, तो कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ही फॉलो होगी, राइट, इन नॉर्थ। और वहीं से वो हवा बहती हुई, ब्लो होती हुई, इट विल कम टुवर्ड्स मिड ऑफ इंडिया। तो यू विल सी समवेयर यूपी, बिहार, लखनऊ एंड दिल्ली एंड एमपी, फिर राजस्थान, गुजरात, यहां तक बहुत ठंड होगी, राइट। हाँ, कंपैरेटिवली नॉर्थ जितनी हमारी नहीं होगी, बट यस, वी हैव मोर ऑफ, वी एक्सपीरियंस मोर ऑफ विंटर देन द सी कोस्ट एरिया लाइक महाराष्ट्र के कई हिस्से, केरला, कर्नाटका, गोवा एटसेट्रा, राइट। सो वंस अगेन, wind from northeast direction comes and it blows from Central Asia. These winds are dry and cold. Weather remains dry and cold in these 3 months. Sky during this season usually is clear, cloudless. Northeast India remains comparatively cooler as it is away from sea coast. Some part of it is a desert. During winter, this region develops high temperature, high pressure, मतलब low temperature, and low temperature मतलब ठंड, तो विंटर में यहाँ पे ज्यादा ठंड होगी, and it diverts the wind. Dry and cool winds are generated due to high pressure. और ठंड बढ़ेगी, हवा भी ठंड होगी क्योंकि प्रेशर ज्यादा है वहां पे नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में. This winds reduces the temperature of the places जो उसके रास्ते में आती है. जब ये हवा ब्लो होने लगती है तो जो भी रास्ते में जगह आती है वहां पे ठंड फैल जाएगी. Like in Delhi, temperature often goes below 10 degree during winter. It remains around 16 in Allahabad, 18 in Calcutta or Kolkata. At this time, temperature in Himalaya is very low. January temperature of Shimla, Darjeeling is around 5. After the snowfall in Himalayas, cold and heavy winds rush towards the North Indian plain. अब यही ठंड हवा बहेगी यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन. गो टू योर 13 and 14 चैप्टर, वहां पे पूरा मैंने नॉर्थ इंडियन प्लेन क्या है मैंने समझाया था. तो ये जगह है यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एटसेट्रा. एज अ रिजल्ट, तो यहाँ पे ज्यादा ठंड होगी. एज अ रिजल्ट, दिस प्लेन अलॉन्ग विद गुजरात एंड राजस्थान ऑल्सो कम्स अंडर द ग्रिप ऑफ कोल्ड वेव. तो फिर गुजरात और राजस्थान भी उसके पंजे में आ जाते हैं. तो हम पे भी ठंड की असर काफी होती है. टेम्परेचर डिक्रीजेस सडनली. फ्रॉस्ट इन सम एरिया डिस्ट्रॉय द कॉटन क्रॉप. अब एकदम से ठंड बढ़ गई, टेम्परेचर काफी लो चला गया, तो वो ही जो सुबह सुबह जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो बन जाते हैं फ्रॉस्ट. तो ड्यू ड्रॉप्स अच्छे हैं वीट के लिए पंजाब हरियाणा में, लेकिन उसका फ्रॉस्ट बन जाना डिस्ट्रॉयज द वीट ऑल्सो एंड कॉटन ऑल्सो. टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग विंटर एक्सेप्ट फॉर माउंटेनियस रीजन लाइक हिमालय. अब माइनस में कभी नहीं जाता ये टेम्परेचर हमारे रीजन में, एक्सेप्ट इन हिमालयन रीजन, because central Himalayas obstruct extremely cold wind coming from Central Asia and protects India from severe cold. अगर हिमालयन रेंज सेंट्रल हिमालयस नहीं होता तो इस तरफ फॉर एग्जाम्पल हम हैं और उसके दूसरी ओर सेंट्रल एशिया, तो यहां से जो कोल्ड विंड ब्लो होके आ रही है उसकी वजह से हमें ठंड लग रही है. और नॉर्थ हिमालय में बर्फ होगी, हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि तब तक उसकी असर कम हो जाएगी ठंड की. लेकिन अगर ये माउंटेन नहीं होते तो सेंट्रल एशिया की तरफ से डायरेक्टली कोल्ड विंड वुड ब्रिंग स्नोफॉल ऑल ओवर इंडिया. एटलीस्ट गुजरात तक तो स्नोफॉल होता ही होता फॉर द 3-4 months. बट दिस हिमालयन रेंज, सेंट्रल हिमालयाज, stands as a strong wall. That is, it obstructs, it stops extremely cold wind coming from Central Asia and protects India from severe cold and snowfall. Clear? So let's see in short. Cold weather, 3 months, December to Feb. Sun shines vertically over southern hemisphere. Australia example. Between 22nd September to 21st March is vertical. India is in northern hemisphere. The slant sun rays in winter, December to Feb. Wind blows from northeast direction and that's from Central Asia. Is cold and dry. Sky is cloudless, that's clear. Northeast India is cooler as is away from seashore. Delhi 10 degree temperature in winter. Allahabad 16, Kolkata 18, Darjeeling 5.
After snowfall in Himalaya, cold and heavy wind moved towards North Indian plain that we already saw, Punjab, Haryana, etc. Thus, North Indian plain, Gujarat receives severe cold क्योंकि हिमालय में स्नोफॉल हो रहा है और वहीं से ठंड हवा बहते हुए हमारी तरफ आ रही है. Temperature, so severe cold temperature, and this temperature now decreases. Frost in some areas like Punjab, मतलब ड्यू ड्रॉप्स, झाकड़ जो कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग, बिना शूज या चप्पल के अगर ग्रास पे चलो तो गीली और ग्रास होगी, दैट इज ड्यू ड्रॉप्स की वजह से. तो वो फ्रॉस्ट बन जाता है अगर ठंड ज्यादा आ गई, तो फिर कॉटन और व्हीट डिस्ट्रॉय होते हैं. क्लियर? तो वी विल सी फ्यू वीडियोस ओवर हियर, राइट? सो लेट्स सी एल नीनो. Every few years, the El Niño phenomenon kicks into life in the Pacific Ocean around the equator. It can affect weather around the world, changing the odds of floods, drought, heat waves, and cold seasons for different regions, even raising global temperatures. But what is El Niño, and how does it happen? Firstly, we need to know what's normally happening in the tropical Pacific. This vast stretch of ocean sees consistent winds, called trade winds, that blow from east to west. These winds push warm water near the surface in their direction of travel, so the warm water piles up on the western side of the ocean around Asia and Australasia. On the other side of the ocean, around South and Central America, as the warmer water gets pushed away from the coast, it's replaced by cold water which is pulled up from deeper down in the ocean, a process called upwelling. This creates a temperature difference across the tropical Pacific, with warmer water piled up in the west and cooler water in the east. Warmer water adds extra heat to the air, which causes the air to rise with more vigor, and it's this rising air that creates an area of more unsettled weather, with more cloud and rainfall. That rising air in the west sets up atmospheric circulation across this part of the world, with warm, moist air rising on one side of the ocean and cooler, drier air descending on the other. This circulation reinforces the easterly winds, so this part of the world sits in a self-perpetuating state until El Niño begins. If conditions are right, tropical Pacific weather systems, or slow changes in the ocean around the equator, can set off a chain of events which weaken or even reverse the usual trade winds. With weakened trade winds, there's less push of warm surface water to the western side of the ocean, and less upwelling of cold water on the eastern side. This allows the usually colder parts of the ocean to warm, cancelling out the normal temperature difference. Because the area of warmest water moves, so does the associated wet and unsettled weather. This changes rainfall patterns over the equatorial Pacific, as well as the large-scale wind patterns. It's this change in winds which has a knock-on effect, changing temperature and rainfall in locations around the world. The main impacts are around the tropics, where you see an increase in the risk of floods in Peru and droughts in Indonesia, India, and parts of Brazil. But virtually wherever you are in the world, El Niño has the potential to affect you directly via the weather or indirectly via socio-economic impacts. There's another impact from El Niño which happens because of all the extra heat at the surface of the tropical Pacific. This releases vast amounts of energy into the atmosphere, which can temporarily push up global temperatures. This is why El Niño years often feature among the warmest on record. Each El Niño event is different, so the global impacts can change. You can find out more about the differing impacts of El Niño on our website. El Niño peaks around Christmas time and lasts for several months. It can dive back to neutral conditions, but sometimes reverses into La Niña. This is the flip side of the oscillation, which sees a strengthening of the normal trade winds. This pushes the warmest water to the far western part of the tropical Pacific and increases the upwelling of cold water in the east.
This cooler water extends out from the coast of the Americas towards the central part of the ocean. La Nina also impacts global weather and tends to have opposite effects to El Nino. You can also see more about La Nina and its impacts on our website. You will see one more also, and that's related to nor'wester. Kal-Baishakhi or nor'westers is a local rainfall and thunderstorm which occurs in India and Bangladesh. Kal-Baishakhi occurs, with increasing frequency, from March till monsoon establishes over northeast India. Sometimes it might be progressive deregos. During this time Odisha, West Bengal, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Bangladesh and northeastern states of India are affected by violent thunderstorms. They cause considerable damage to life and property and are known as Kal-Baishakhi or the calamity of Baishakhi, the month of April to May in India. Kal-Baishakhi is accompanied by strong squalls and sometimes by hail. On extremely rare occasions, tornadoes may also accompany them too. Flying through these winds can be extremely dangerous. Circumnavigating or penetrating them may be disastrous and pilots avoid them. However, the rainfall in these storms is beneficial for the tea cultivated in Assam and for the jute and rice and tea cultivated in West Bengal and Bangladesh. So we stop over here, and one more video will be provided to you very soon. That is your pre-recorded video, and just revise it. And if you have any doubt, yes, you can ask as we meet in the next lecture. Initially 5 to 10 minutes we will meet every lecture, जैसे मैंने बताया था, and then you can ask the doubt in those first few minutes. Thank you so much. Thank you.